Jai Jhulelal, Jyoti ji. Namaste, Jai Jhulelal. God bless you and thank you very much for joining us in VSSS show episode number 725. It's a great honor because I'm a very Same big here. fan Same here. of Jyoti. I'm a very big fan of your mama. I mean, what a dynamic lady she is. So what kind of the program she organized at Kota. I keep following her on the social media. Fantastic. And luckily, I think so. She's there with you today in Bombay. So maybe I would like to call her also after some time. Yeah, that would be lovely. Thank you so much, anyways, for appreciating her and her efforts. Nah, it's a great honor. I know that what she is a real soldier of our community. All right, Jyotiji, first let's talk to the audience about yourself. Who are you? How you come to Mumbai? Your education, and how you just entered in this glamour industry. Would you like to tell our audience, please? Over to Yeah, you. absolutely, absolutely. My name is Jyoti Madnani Singh, as you've already introduced everybody. And I have studied from Sophia School in Kota, Rajasthan. And after that, I gave exams like any other student, and I got through NIFT, National Institute of Fashion Technology. Okay. National Institute of Fashion Technology, it was just there was just 30 seats all over India. Oh, So it was an achievement for me to actually get into NIFT. It was an opportunity for me which I grabbed, and I did my 4-year degree course from NIFT. And from there on, there was no looking back. I did my internship with designers who were already there in the industry. So that's how I started working independently. I assisted designers, and then I started working independently in a couple of films now I have done. And one of my film has just released on this 2nd of June, which is known as Mumbaikar on Geo Cinemas. So please, okay. everybody, go and watch. Great. Congratulations, Jyotiji. But tell me something about your family. I believe that now you're uh, married and here in Mumbai. yeah, I'm married. My husband is a writer director. He Oh, has written for more than 40 GC shows, and he's also produced one show on NDTV. The name was Queens Hai Hum, and he's also a writer, lyricist. So okay. we met via work only, and then we got married, and I have a beautiful son now. So Oh, that's all. Yeah. good. But from Sophia College, Jyoti, who was the motivator behind you to go in this fashion designing line? Your mama or Yeah. That's an interesting question because I was a math science student, and okay? my father wanted me to become an engineer because my father is an engineer himself. So Okay. but I was just not. I was just not made for it actually. I somehow, though I gave a lot of exams like IIT and AIEEE, because Kota, it's famous for engineering, and Education. factory products, come out from there. Yeah, And that's yeah, so I gave a lot of exams, but somehow, my interests were not there in maths and sciences. So I also opted for NID and NIFT. There was no motivation factor, but yes, of course, my mom uh, was somebody, who pushed me through, because when I was small, I used to go to malls, and I used to ask her that, can we rob this mall? Because that passion, generally, kids have this passion for toys, they want to play, but my passion was costumes. I always wanted to, buy things, and put together things. I was more so, I used to dress my Barbies when I was small. So okay. that passion came from there only. And when I told my mother that, this engineering is not for me, my father, he got a little angry that, how will she get through and all that stuff. A lot of drama happened, but then somehow, I landed up in Bombay. And after landing up in Bombay, nobody wants to leave Bombay because it's so much. Definitely. Yeah, yeah. ज्योति, ये फैशन डिजाइनर्स का एक्चुअली क्या काम होता है? ये मैंने कोट पहना हुआ है, ये आपने पिंक शर्ट पहना हुआ है, इसमें आप ऐसा क्या ऐड करते हैं कि लोग बाग आपको जो चीज 100 रुपए की होती है उसके लिए 1000 रुपए भी देते हैं, 10,000 भी देते हैं, 1 लाख रुपए भी देते हैं? What actually the skill behind this fashion designing? What you like to convey to the young generation listening to you today?
या एब्सोल्युटली। लोगों को लगता है कि फैशन डिजाइन, जैसे आपने भी बोला कि कोट में और शर्ट में क्या है, तो लोगों को जी, लगता है फैशन डिजाइनिंग तो चलो ठीक है, एक काम है, कर लिया हो जाएगा। बट एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता कि उसके पीछे कितना थॉट प्रोसेस जाता है एक चीज को डिजाइन करने के पीछे। अब अगर आपने आज ये ब्लू कोट पहना है तो आपने ये ब्लू ही क्यों पहना है, या आपने जी, ये मल्टी कलर का टाई लगाया हुआ है तो ये इसके साथ कैसे मैच हो रहा है और क्यों मैच हो रहा है। हर चीज के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। हो सकता है आपके वार्डरोब में ऐसे 50 सूट हों, बट आज आपने ब्लू ही क्यों पिक किया। तो वहां पे वो डिजाइनर का काम आता है। आई एम श्योर आपकी वाइफ आपको सजेस्ट करती होंगी ये पहन लीजिए या वो पहन लीजिए, बिकॉज आई नो फॉर श्योर दैट योर वाइफ इज ऑल्सो अ डिजाइनर। सो वो डिजाइनर एक थॉट जाता है कि कैसे हम डिजाइन करें ये कॉस्ट्यूम, यही कलर होना क्यों चाहिए, लोग यही कलर क्यों पसंद करेंगे और इसी पे पैसा क्यों लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आई स्टाइल एंड डिजाइन फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन, जिसमें एक्टर्स को हम लोग मैं ज्यादा स्टाइल एक्टर्स को करती हूँ, सेलिब्रिटी स्टाइलिंग एंड सेलिब्रिटी डिजाइनिंग। तो उन लोगों को अगर उन्होंने ये ड्रेस पहना है सपोज किसी गाने में या किसी सीन में, तो उस समय वो स्टोरी की क्या डिमांड है, उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं चीजें। और जब वो चीजें से कुछ कुछ होता है मैं आपने देखा एक बैंड है या वो सलमान खान का कोई मूवी, उसका कोई कैप है, वो फेमस कैसे हो गया, फिर वही लोग चीजें खरीदना चाहते हैं। हम लोग बेसिकली एक ट्रेंड सेट करते हैं। जो चीजें आपके जो दिमाग में होती है वो हम पेपर पे उतारते हैं और पेपर के बाद हम उसको एक्चुअल बनाते हैं। तो इसीलिए लोग आई थिंक अट्रैक्ट होते हैं डिजाइनर चीजों की तरफ से, और वो सुंदर दिखती हैं, आंखों को प्लेजेंट लगती हैं वो चीजें। इसलिए आई थिंक लोग हमें लाख रुपए भी देते हैं कॉस्ट्यूम्स के। एक आदमी सोचता है, दूसरा आदमी पेपर पे उतारता है, तीसरा आदमी डिजाइन कपड़े को किस तरह काटा जाता है, फिर जी, एक जना सिलाई भी करता है, फिर एक बिल्कुल जना उसको आर्टिस्ट के हिसाब से उसको पहना करके चेक भी करते हैं कि इस पर्टिकुलर सीन, पर्टिकुलर लोकेशन पे ये कलर उनको सूट करता है कि नहीं करता है। तो बिल्कुल। ये आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इसमें कितने लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं? कि क्रेडिट जाता है ज्योति बदनानी सिंह को, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों का हाथ आपकी सक्सेस में? थोड़ा उस बारे में बताएंगे? देखिए हमारे पास स्क्रिप्ट आता है, तो हमारा टीम होता है डिजाइनर्स का, जिसमें 3 से 4 असिस्टेंट्स होते हैं। एक विजुअल आर्टिस्ट होता है हमारे साथ में, जी, स्केच बनाने वाले भी होते हैं हमारे साथ, टेलर्स की यूनिट होती है, मास्टर्स जी, होते हैं, कारीगर्स होते हैं। जब हमारे जी, पास एक स्क्रिप्ट आता है तो हम उसे पढ़ते हैं, उसे डिस्कस करते हैं डायरेक्टर के साथ कि उनका क्या विजन है, वो क्या सोच रहे हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिजाइनर से डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो उनके विजन से हमें चलना पड़ता है, डायरेक्टर की विजन से या एक्टर के विजन से। बिकॉज एक्टर को स्क्रीन पे दिखना है तो उनको भी एक आइडिया होता है कि हम पे क्या सूट करेगा और क्या सूट नहीं करेगा, हम पे क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। जी, डीओपी भी आते हैं पिक्चर में कि भाई अगर सपोज बैकग्राउंड हमारा हरा है तो हम कहीं कपड़े भी हरे ना पहना दें, तो वो मर्ज होने लगती हैं आगे पीछे से चीजें। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम सीन वाइज बाइफरकेशन करते हैं। बाइफरकेशन करने के बाद हम डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इट में जाते हैं। हम स्केचेस बनाते हैं, गूगल सर्च करते हैं। कई बार तो ये होता है कि हमें सपोज कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा है गूगल पे, तो हम हकीकत में जाते हैं उस जगह पे, वहां पे एक्चुअल पिक्चर्स निकालते हैं कि वो ओके, कैसी है। सपोज कोई गांव का स्टोरी है तो हम वहां जाएंगे, रिसर्च करेंगे, पिक्चर्स निकालेंगे, लोगों से, रियल लोगों से हम बात करते हैं कि ये उन्होंने क्यों पहना है या कैसे पहना है। और कई बार ऐसा होता है हमें ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए हमें उनके ही कपड़े हम ले आते हैं हकीकत, ताकि हमारे जी, ऑडियंसेस रिलेट कर पाए उस चीज से। उसके बाद जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं हमारे डीओपी को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे एक्टर्स को, और हम सब जब एक पेज पे होते हैं, तब उसके बाद हमारा टेलर्स का यूनिट आता है और हमारे असिस्टेंट्स आते हैं जो घंटों घंटों सोर्सिंग में जाते हैं, सोर्सिंग करके लेके आते हैं, एक लुक को पुट टुगेदर वेल तरीके से उसको पुट टुगेदर करते हैं। टेलर्स हमारे रात रात भर लगे रहते हैं बेचारे, स्टिचिंग करके देते हैं हमें, क्योंकि फिल्म टीवी में डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिलीवरी नहीं करेंगे तो शायद लाखों का नुकसान हो जाएगा एक दिन का कॉस्ट। टाइम तो पे डिलीवरी।
जी, टाइम पे डिलीवरी, हमारे पे बहुत प्रेशर होता है कि हम टाइम पे डिलीवरी करें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिकॉज़ अगर हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो स्क्रीन पे दिख कर आएगी वो चीज़, और हमारी ऑडियंसेस बहुत समझदार है। तो इसीलिए हम फिर टेलर्स को लेके आते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, हमारे लुक टेस्ट्स होते हैं, ट्रायल्स होते हैं एक्टर्स के साथ। कई बार चीज़ें नहीं पसंद आती तो स्क्रैप भी हो जाती है, हम रीवर्क करते हैं उसके ऊपर। And that's how, we dress our actors and then manage them as well on the sets. एग्जैक्टली दूसरा मेरा सवाल यही था आपसे कि पॉजिटिव नेगेटिव एप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म दोनों चीजें आपको फेस करनी पड़ती होगी, तो जब आपका एप्रिसिएशन होता है तो आप क्या रिएक्ट करती हैं और जब आपका क्रिटिसिज्म होता है तो आप अपने आप में क्या डेवलप करना चाहती हैं, देखिए बताना हर चाहेंगे? दिन, जी हर दिन ना एक लर्निंग प्रोसेस है। बिकॉज कभी ऐसा नहीं होता कि आज हमने एक फिल्म करी तो दूसरी फिल्म भी हमें सेम ही, आप भी देखते हैं। अभी सपोज आपने कुछ कुछ होता है देखी या आपने कभी अलविदा ना देखी, तो दोनों का स्टोरी अलग है, दोनों का बैकड्रॉप अलग है, दोनों का स्टाइलिंग, वे ऑफ स्टाइलिंग अलग है। तो क्रिटिसिज्म जब होता है तो हम उसको लर्निंग एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं, और आई डोंट टेक सक्सेस टू माई हेड। सो जब अप्रिसिएशन होता है तो अच्छा तो लगता है, बट आई टेक इट वेरी मॉडेस्टली एक्चुअली। एनी पर्टिकुलर कमेंट्स यू हैव गॉट इट फ्रॉम द योर स्टार्स व्हेन आपने उनको दिया और उनको लगा कि अच्छा है, तो आपको कोई ऐसा अच्छा एप्रिसिएशन दिया हो किसी स्टार ने? मुझे एक्चुअली काम करने के प्रोसेस में यू बिकम फ्रेंड्स विद योर एक्टर्स, बिकॉज वो एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है एक्टर्स के साथ। तो ऐसे जी बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे विजय सेतुपति जी हो गए, विक्रांत मासी हो गए, या तानिया मनिकतला हो गई, या और भी मैंने जो फिल्में की हैं, जैसे रहस्य मैंने की थी, उसमें टिस्का चोपड़ा थी, या 420 आईपीसी मैंने की, उसमें विनय पाठक जी थे। तो जी। जब इनके साथ काम करते हैं तो वो ज़रूर, अगर अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करते ही हैं। और आगे कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं आप हमारी पर्सनल स्टाइलिंग ही कर दीजिए, फ़िल्म तो ठीक है, बट हम इवेंट्स में जाते हैं, शोज़ में जाते हैं, कॉर्पोरेट्स में, तो वहाँ भी आप मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव रिपीटेड मी देयर आल्सो। सो ज्योति, मैक्सिमम आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई यशराज फिल्म के साथ, तो कोई करण जौहर के साथ, तो कोई सुभाष घई के साथ। जब आर्टिस्ट सेट पे जाता है तो उनका पूरा का पूरा एक सेट होता है, एक मेकअप मैन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, एक फैशन डिजाइनर भी होता है, एक हेयर ड्रेसर भी होता है। तो जी। आपका कॉन्ट्रैक्ट फिल्म हाउस से होता है या आर्टिस्ट के साथ होता है जिनके साथ आपको डील करनी पड़ती है? देखिए जहाँ तक मैंने काम किया है अभी, मैं तो मुझे नॉर्मली जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन से मैंने ये काम किए हैं, या कभी-कभी ओके। एक्टर भी रिकमेंड करते हैं। मेरा कोई ऐसा टाई अप नहीं है एजेंसीज़ के साथ में। अगर एक्टर मोस्टली अगर एक्टर बोलते हैं कि नहीं ये अच्छी हैं, आप इनको ले लीजिए, आप इनको ट्राई कीजिए, या फॉर दैट मैटर अगर डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं आप इनके साथ काम तो करके देखिए। जैसे जब मैं नई-नई आई थी तो बहुत बार डायरेक्टर्स ने मुझे बोला आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेज़ेंटेशन तो हमें पिच कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं, या आप एक कॉस्ट्यूम तो हमें बना के दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो एवरी टाइम यू गो थ्रू दैट एग्ज़ामिनेशन, इट्स नॉट दैट कि आपको अगर यश राज ने साइन कर लिया है तो आप धड़ाधड़ करेंगे पिक्चर्स, ऐसा नहीं है। ये मिथ है। वहाँ पे भी 10 डिजाइनर्स होंगे जो जिनको प्लेस किया जाता है अंडर अ सर्टेन ब्रैकेट। ज्योति, इन द पास्ट समवेयर मैं इस लाइन से कहीं ना कहीं थोड़ा जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कई बार देखा था कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को अच्छी सी ड्रेस उनको सेट के ऊपर पहनने को मिलती थी, उनको इतनी अच्छी लगती थी कि वो पहन के चले ही जाते थे। जी, जी। ऐसे ये वक्त बहुत ये ऐसे वक्त बहुत में क्या करते हैं आप, मतलब? कुछ नहीं करते। जी जी। देखिए एक्टर्स को, हम तो डिजाइनर्स हैं तो हमें तो अच्छा ही लगता है कि हमारा बनाया हुआ ड्रेस उन्होंने पहना है और वो ले जाएं उसको। बट हमारी भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, बिकॉज हमारे पीछे प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने दे हैव पुट इन लॉट ऑफ मनी on these costumes. So there are some people who want to keep it by themselves. The producers want to keep it by themselves, the production houses want to keep them by self. Or sometimes if your deal as a designer is that it's a package deal in your this thing,
then probably you also take garments along with you. But normally actors कुछ एक टोकन ले जाना चाहते हैं जो कि भाई हमने इस फिल्म में काम किया तो हम ये एक टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस लेके जाएं, ऐसा Alright. होता है. ज्योति, फैशन डिजाइनिंग के अलावा आपकी कुछ हॉबीज जो आप हमें बताना चाहती हो? मेरी हॉबीज इसी से रिलेटेड है ज्यादा. जैसे मुझे स्केचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट आई हैव सोल्ड माय पेंटिंग्स in Delhi and in exhibitions. I've sold my paintings. So this is something I love to do in my part time. When I'm not working, probably I'm painting. Yeah. Is your mama is next to you? No, she's not around. All right. Jyoti, would you like to give any good message to young generation to become a success in their life in any field? Yeah, I would say just be be honest, be persistent. अगर आप continuously किसी चीज के पीछे लगे रहेंगे तो वो होगा ही. Then entire everybody is there, the entire universe supports you. That energies are there if you really want to work hard into something and you're determined to do that. So all the young people and young generation who want to become a designer or maybe want to come in this field, I will just say that consistency is the key. So आप कंसिस्टेंट रहिए, काम जरूर आएगा और आपको अच्छा काम मिलेगा ही मिलेगा. यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप बॉम्बे में आके. बॉम्बे एक्सेप्ट्स यू. So thank you so much, Jyoti, for joining us, and it was a great talking to you. Thank you so much, and we wish you all the best. So Honorable Jyoti Madani Singh, फैशन डिजाइनर जो आपसे बात कर रही थी,